Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is me, your maths teacher, and today I am here with a new lecture. So, in the previous lecture, we have some explanation of basic concepts of sets. What we studied in that lecture is the basic definition of set. We saw some important sets of numbers like natural numbers with capital N. It is denoted with capital N, whole numbers, prime numbers, integers, even number, odd numbers. Then we studied set notation, three types: set builder form, and tabular form, and descriptive form, and also some types of sets like null set, equal set, equivalent set, subset, and power set. Today what we are going to do, we are going to solve exercise 1.1, that is on page number 5 of your course book. I have shared here the whole exercise. It will help you if you don't have a book still. So the whole exercise is actually related to the concepts described in the previous lecture. So if you haven't watched the previous lecture, so you must watch that first, then you will be able to easily understand this exercise. Here I am going to solve the first 5 questions of this exercise. You guys must also solve them in your copies. Let's start with question number 1. In question number 1, we have to write the given 4 sets in tabular form as well as set builder form. So let's start with part A, that is the set of positive integers greater than 2 and less than 6. This means we have to write a set. We can name that set as A, B, C or D, whatever name we want to give it, but we have to write only positive integers, means only positive numbers that are greater than 2 and less than 6. So what we will write here, we will write it as, you can see here, the answer is A is equals to 3, 4 and 5. As well as here I have also written the set builder form of this set. That is, we are going to read it as x such that x belongs to z positive. z और उसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का साइन है, दैट शोज़ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. देन वी हैव अ कैप साइन दैट इज़ read as and. Here the equation is x greater than 2 and less than 6. So this is the tabular form of the set A. Now let's see part B. Part B is the set of positive integers less than 20 that are divisible by 5. Means we have to write here only positive numbers that are less than 20 as well as they must be divisible by 5. Means we cannot write numbers, all the numbers in sequence here. We will just write the numbers that are less than 20 and that are divisible by 5, means that are multiple of 5. You can see the answer here. B is equals to 5, 10 and 15. As we know, after 15, 20 will be the number that will be divisible by 5, but as we have to write numbers less than 20, so we cannot write 20 here. Now see the tabular form, set builder form also, that is x such that x belongs to positive z, means positive integers, and x is multiple of 5 less than 20. I hope that is clear to you. Now
Let's move to part 3, the set of natural numbers between 4 and 12. Here we have to write a set which contain numbers from the natural numbers set, but the numbers must be between 4 and 12, means they must be greater than 4 and less than 12. So the answer will be 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. I haven't written the set builder form of this set here. This means you guys have to try to write the set builder form of set C by yourself. Then we have part D, set of first 6 positive prime numbers. Well, prime numbers are the numbers which are divisible by 1 or by themselves, means they have only two factors, 1 and the number itself. So first 6 positive prime numbers will be, the prime number starts from 2. We will write here 2, 3, 5, 7, 11 and 13. Here I haven't wrote the set builder form. This means you guys will try to write the set builder form by yourself. I hope question number 1 is clear. Now move to question number 2. That is, we just have to tell which set are null set. Null set means a set containing no element at all. So let's see set A. Set A is equals to, so here set A is equals to x such that x is a letter before A in English alphabet. Before means पहले. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए से पहले कौन सा लेटर आता है? क्या कोई लेटर ए से पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में? नहीं आता है. दिस मीन्स कि ये जो सेट कैपिटल ए से जो रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है फर्स्ट सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा. जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता, तो दिस मीन्स इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा. दिस मीन्स सेट ए इज़ अ null set. Then let's see number B. Set B is written as x such that x plus 5 is equals to 5. अब यहाँ पे जो इक्वेशन हमें बता रही है वो ये बता रही है कि B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x जो है वो मौजूद है. और वो x हम कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 से. तो अब आप मुझे ऐसा नंबर बताइए जिसमें अगर मैं 5 ऐड करूं तो 5 ही बने. बिल्कुल, 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर मैं 5 ऐड करूं तो 5 बनता है. यानी कि बी सेट में एक एलिमेंट हमारे पास आएगा और वो होगा 0. तो एलिमेंट मौजूद है, यानी कि बी सेट नल सेट नहीं है. हेयर यू कैन सी बी में एक एलिमेंट आ रहा है 0, तो दिस मीन्स बी इज़ नॉट अ null set. Now let's see set C. C is equals to x such that x is less than 7 and greater than 8. अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो? कोई एक ऐसा नंबर जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो. दोनों कंडीशंस एक वक्त में ट्रू नहीं हो सकती. यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो एक ही वक्त में 7 से छोटा भी हो और 8 से बड़ा भी हो. 7 से छोटे नंबर्स तो 6, 5, 4, 3 इस तरह से होंगे, और 8 से बड़े नंबर 9, 10, 11 होंगे. तो 7 से छोटा और 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है. दिस मीन्स कि सी सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा और सेट सी जो है वो नल सेट कहलाएगा. Then we have set D, that is x such that x is past president of Pakistan who was a woman. तो पाकिस्तान की पास्ट में कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं रहा जो कि वुमेन हो. तो इस सेट में भी कोई नेम नहीं आएगा और ये भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा और ये भी
नल सेट ही रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। You can see all the answers at the bottom now. I hope they are clear. Let's move to question number 3. In question number 3, we have to tell either the set are finite or infinite. Well, a finite set is a set that contains elements that are countable, यानी कि एक फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप काउंट करके बता सकते हैं कितने। और एक इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर के एलिमेंट्स को आप काउंट करके नहीं बता सकते टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। मींस वो इनफाइनाइट सिमिली चल रहा होता है। जैसे कि एक सेट नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद वो काउंटिंग चलती चली जाती है और कहीं पर भी एंड नहीं होती। दिस मीन्स कि वो कहीं पे भी ख़त्म नहीं होगा सेट, और उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। हम उसके टोटल एलिमेंट्स बता ही नहीं सकते कि कितने हैं। So let's start with part A. Part A is the months of a year. So ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक ईयर के मंथ्स हैं। तो कैन यू काउंट द मंथ्स ऑफ अ ईयर? Yes, we can count the months of a year, and we know there are only 12 months in a year. So this means set A is a finite set. Then let's look at part B. Part B is here. The days in a year. So can we count the days in a year? Yes, we can. We can easily count the days in a year. They are either 365 or 366. So set B is also a finite set. Then we have set C, that is the students of your class. Well, you can easily count the students of your class. They are about 23 students in your class, so we can count them. So this set is also a finite set. Now let's see set D. As I have told you that a set whose elements are infinite means it contain uncountable elements. So the set will be infinite. Here you can see the set is starting from 2, and after 10 you can see there are dots, and these dots represent that the set is continuing and it is continuing till infinity. So set D is infinite set. Let's move to set E, the set of lines passing through a point. Well, through a single point in mathematics, we say through a single point infinite lines can pass through it. So this means the set is infinite. The last set is the set of line passing through 2 points. Well, there is only one line in mathematics, and only one line can pass through 2 given points. This means the line is countable, only one. There is only one element in this set, so the set is finite. You can see the answers now. Now let's move to question number 4. This is quite a complicated question than the previous 3, so you guys must concentrate on it. Given is S is the name of set, is equals to x such that x is a positive integer. यानी कि यहाँ पे एक सेट S है और उस सेट में पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। मींस यहाँ कोई लिमिट नहीं बताई गई। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होंगे और उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ S दैट आर सबसेट्स ऑफ A। अब A तो हमें अभी तक पता ही नहीं था। अब A भी यहाँ पे गिवन है। A जो है वो मौजूद है। A इज़ x such that x इज़ एन इंटीजर लेस देन 3 से कम इंटीजर्स। तो लेस देन इंटीजर्स लेस देन 3 जो हैं वो हमारे पास होंगे 1 और 2। सो लेट्स सॉल्व इट। First we will write set A. As I have told you, it is 1 2 3 and 4. Then we will
write set A, that is 1 and 2 only. Then we'll write the proper subsets of A. Subsets of A जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? सबसेट्स किसी भी सबसेट्स ऑफ S बनाएंगे, किसी भी सेट के सबसेट हम कैसे बनाते हैं? फर्स्ट सेट हम लिखते हैं एम्प्टी सेट, फिर हम सिंगल एलिमेंट्स उसके लिखते हैं एक एक सेट में करके, और उसके बाद फिर 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके, फिर 3 को, फिर 4 को, एंड सो ऑन। अगर उसके एलिमेंट्स टोटल ख़त्म नहीं हो जाते, उसके लिए एक फार्मूला भी होता है 2 पावर रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि जो सेट एस है उसकी तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें पता ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्रॉपर सबसेट वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। पहला सबसेट हमारे पास होगा एम्प्टी सेट, उसके बाद 1 2 सिंगल हम एलिमेंट्स लिखेंगे, एंड सो ऑन। मैंने आगे डॉट डॉट से शो कर दिया है कि ये आगे तक जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है, तो मैं भी इसके सबसेट्स कंप्लीट नहीं लिख सकता इनफाइनाइट सेट के। देन सबसेट लिखते हैं ए के, तो ए के सबसेट्स हमारे पास पहला उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। अगर आप देखें, पहला एम्प्टी सेट, देन 1, देन 2, और उसके बाद दोनों एलिमेंट्स हो गए हैं, तो फिर अब क्या होगा? कंबाइन होके आएगा, और इत्तेफाकन कंबाइन होके जो सेट बना है वो सेट ए खुद बन गया है। तो यहाँ पे हम सबसेट्स को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि पहला सबसेट आता है एम्प्टी सेट, और आखिरी सबसेट जो भी बनता है वो उस सेट के बराबर ही होता है जो कि जिसके हम सबसेट्स बना रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? सिर्फ़ और सिर्फ सबसेट एस और ए के सबसेट्स के दरमियान कॉमन लेना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो एम्प्टी सेट है ये दोनों में मौजूद है, कॉमन है। अगर आप ऊपर और नीचे यहाँ पे देखें, ये देखें एम्प्टी सेट यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो पहला तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर आप देखें सेकंड 1 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, ये भी कॉमन है दोनों में, ठीक। देन 2 यहाँ भी मौजूद है और 2 यहाँ भी मौजूद है। ये 3 सबसेट तो कॉमन है, ये तीनों तो आएंगे। अब बात सिर्फ ये रह गई कि ए का एक सबसेट बच रहा है जो 1 और 2 है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एस में है या नहीं? तो अगर एस में जो है वो 1 और 2 सेपरेटली मौजूद है, दिस मीन्स कहीं आगे जाकर इनका कंबाइंड सबसेट भी बनेगा। दिस मीन्स 1 और 2 भी इसमें मौजूद होगा। तो यही चारों सबसेट जो है वो हमारे पास आ जाएंगे इसमें भी। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ एस दैट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो दोनों में जो कॉमन आ रहे थे, ए के चारों ही सेट कॉमन आ रहे थे एस के साथ, तो वो चारों ही इसके आंसर में आ गए। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू the last part, the last question of today's lecture, that is question number 5, जिसमें एक सेट गिवन है a इज़ इक्वल्स टू a, b, c, d। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ सेट a में? 4 एलिमेंट्स हैं। आपको बताया था कॉमा जो है वो 2 एलिमेंट्स को सेपरेट करता है, तो यहाँ पे a के बाद कॉमा है, फिर b है, फिर कॉमा है, फिर c है, फिर कॉमा d। दिस मीन्स यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमें इसके निकालने हैं प्रॉपर सबसेट। तो अच्छा, एक टर्म होती है सबसेट, एक होती है प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। अगर सिर्फ कहा जाए सबसेट बनाए तो फिर आप उसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर तमाम सबसेट मिला के लिख देते हैं, और अगर ये कहा जाए प्रॉपर सबसेट बनाए तो प्रॉपर सबसेट में तमाम के तमाम सबसेट आएंगे सिवाय लास्ट सबसेट के। और लास्ट सबसेट कौन सा होता है? लास्ट सबसेट वो सेट खुद ही होता है। तो पार्ट ए हम यहाँ पे इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमें लिखने हैं सबसेट ए के। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताएं, सबसेट मैंने निकालना बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने एक फार्मूला यूज़ किया था 2 की पावर n। n मीन्स जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ क्या होगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, यानी कि यहाँ टोटल जो सबसेट आएंगे वो आएंगे 16। और अगर प्रॉपर सबसेट देखा जाए तो 16 में से एक कम कर दीजिए, यानी कि 15। तो हमें 15 सबसेट इसके लिखने हैं। और सबसेट शुरू कैसे होंगे?
एम्प्टी सेट से पहला एम्प्टी सेट, दूसरा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और उसके बाद ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी, और फिर ए बी सी, फिर ए सी डी। इस तरह से मतलब अब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं आप उनको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेट्स सी, ये है प्रॉपर सबसेट्स हमें लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट आप देख लें, एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल तमाम, फिर उसके बाद ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, देन ए का काम ख़त्म हो गया, बी के साथ करेंगे, बी के साथ सी, बी के साथ डी। अच्छा, हमेशा जो है वो सीक्वेंस में चलना है, कभी भी रिवर्स ऐसे नहीं लिखेंगे, बी ए नहीं लिख सकते, ठीक है। जो एलिमेंट की जो पोजीशन है उसको कभी चेंज नहीं करेंगे, रिवर्स में नहीं लिखेंगे। बी सी हो गया, बी डी हो गया, उसके बाद बी का काम भी ख़त्म हो गया, सी के साथ डी आ जाएगा, और आगे कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद अब जो है वो तीन तीन एलिमेंट्स का लिखेंगे, ए बी सी, ए बी डी, देन बी सी डी एंड ए सी डी। अगर काउंट करें तो ये 15 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। दिस मीन्स हमने प्रॉपर सबसेट पूरे लिख लिए। अब यहाँ पे कितने टोटल सबसेट होने चाहिए थे? 16। एक जो कम है वो एक्चुअली इम्प्रॉपर सबसेट है और वो सेट खुद ही होता है। तो अगर आप नेक्स्ट पार्ट का भी आंसर देखना चाहें तो वो क्या होगा, वो ये सेट खुद ही होगा, ए बी सी डी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो लिखा हुआ है पहले से, तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगी। ये देखें, वो सेट खुद ही है इम्प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट खुद होता है। यानी कि ए सेट का अगर इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है तो उसी को लिख देंगे हम उठा के, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट और हैं, सी एंड डी, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब इसमें कुछ नई चीज़ भी आ रही है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट सी को पढ़ते हैं। टू सेट्स, हमें ये जो हमने सब सेट बनाए ना पीछे ए के, उसमें से दो सेट निकालने हैं। एक को बी नाम दे देंगे, एक को सी। कोई से भी दो सेट उठा सकते हैं, लेकिन क्या हो, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बी और एक सिंबल है और फिर सी है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल कहलाता है प्रॉपर सबसेट का सिंबल, ठीक है। इसका ओपन साइड सी की तरफ है, इसका मतलब है कि सी जो है वो बड़ा सेट होगा और बी जो है वो छोटा सेट होगा। अब ये बड़ा और छोटे सेट का मतलब ये बी जो है वो सब सेट ऑफ होगा किसका, सी का। बी जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, सी का। यानी कि बी के एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स से कम रहेंगे। अब एक काम करते हैं, पहले वापस जाते हैं पीछे वाली स्लाइड पे। ये लिखे हुए प्रॉपर सबसेट सारे, इसमें से कोई से भी दो आप उठा लेंगे सेट। बस होना ये चाहिए कि उसमें से एक सेट जो हो उसके एलिमेंट कम हो और दूसरे सेट के एलिमेंट ज़्यादा हो, प्लस पहला वाला सेट जो है वो पूरा का पूरा दूसरे सेट में मौजूद हो। चलें, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैंने देख लिए, मुझे कुछ याद भी हो गया, आप भी आपके सामने आपने लिख लिए होंगे अपने पास। हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे ज़रा देखते हैं। मैंने यहाँ बी सेट लिया है सिर्फ़ और सिर्फ एक सेट जिसमें ए एलिमेंट है, और सी सेट मैंने ले लिया है ए कॉमा बी। तो आप देखें, बी में एक एलिमेंट है, सी में दो एलिमेंट्स हैं, बी जो है वो पूरा का पूरा ए में मौजूद है। तो ये पूरा हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। मतलब मुझे पीछे वाले काम से ही बस दो सेट उठाने थे, मैंने उठा लिए। नाउ डी को देखते हैं। डी में सब सेम है, पूरी कंप्लीट सेंटेंस सेम है सिवाय एक चीज़ के, और वो है ये सिंबल। अगर यहाँ आप सिंबल देखें तो अब वही सिंबल वही है, बस उसके नीचे एक लाइन भी आ गई है। ये सिंबल कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट में मैंने आपको क्या बताया था कि इम्प्रॉपर सबसेट तो सेम ही होता है सेट के। अब यहाँ क्या कह रहा है कि बी जो हो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो सी का, यानी कि बी और सी दोनों सेम हो। ए की कोई सा भी सेट उठा लीजिए, उसी को बी भी कह दीजिए और उसी को सी भी कह दीजिए, और बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सी का। लेट्स सी दी आंसर। आप देखें, मैंने बी भी ए कॉमा बी ले लिया और सी भी ए कॉमा बी ले लिया, दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और ये सबसेट मैंने कहाँ से लिए? क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 के ही पार्ट्स हैं, तो वो जो ए के पीछे सबसेट बनाए थे वहीं से पिक किए। मैं कोई से भी पिक कर सकता था, सिवाय सिर्फ़ और सिर्फ मुझे देखना ये था कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करे जो इसमें गिवन थी। आई होप आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।
इनकी प्रैक्टिस करें, इनको जो है वो अपनी कॉपी में कर लें, ताकि जो है वो आपको समझ में और ज़्यादा आ जाए। I hope you guys must have enjoyed the lecture. So, thank you.